So, good evening, everyone. A very warm welcome to all of you on behalf of Ignited Minds by PHF. It is my privilege to welcome you to another enriching session of our learning series, Guruji ke Saath Guruvar 2.0, which began on 10th of April 2025 under the mentorship of our respected Guruji, Dr. Liaquat Namole. Today's session is very special and meaningful as we come together to celebrate the auspicious occasion of Guru Purnima, a day dedicated to expressing our gratitude to the teachers, the mentors who have illuminated our path with knowledge and wisdom. On this special occasion, we would like to extend our heartfelt appreciation to Dr. Liaquat Namole sir, whose vision, dedication, and selfless commitment have transformed this learning journey of thousands of homeopaths. Sir pioneered the teaching of the mind method, gestures, and practical case analysis through free online sessions conducted on platforms such as Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, and Zoom. Thanks to his relentless efforts, we have successfully completed 155 learning sessions, benefiting students, general practitioners, and homeopathic practitioners across the country. This remarkable journey would not have been possible without you. Your guidance and wavering support, Dr. Liaquat sir. We sincerely thank you for for inspiring us every week and humbly request you to continue this noble mission so that many more doctors can learn, grow, and practice homeopathy following your teachings. I would also like to share a few words about the PHF Promisalon Homeopathic Forum. This was founded by Dr. Liaquat Namole sir with the vision of educating homeopaths and encouraging general practitioners to rediscover and confidently practice homeopathy. Through his guidance and training, sir has successfully inspired and transformed more than 2,000 general practitioners towards homeopathic practice. PHF regularly organizes a wide range of educational activities to reach homeopaths who are unable to practice effectively due to lack of proper guidance and mentorship. One of its pioneering initiatives is Ignited Minds by PHF. Started as a WhatsApp group initially, and today nearly 3,000 doctors participate in daily learning and academic discussions on Telegram. Recently, we also completed a free webinar series of 100 lectures on Zoom, and these valuable sessions are now available on YouTube channel Ignited Minds by PHF, allowing homeopaths everywhere to continue learning at their convenience, which is very, very important. Once again, I extend a warm welcome to each of you and thank you, Dr. Liaquat Namole sir, for guiding us always. Celebrating the spirit of Guru Purnima and a lifelong learning. Wishing everyone an enlightening and inspiring session ahead. Over to the first speaker, we have Dr. Manisha Soni. Ma'am, over to you. Thank you. You're on mute. You have to introduce Nishu also, na? No. That's okay. No. Come on. Okay, I will introduce Dr. Manisha Soni also. Dr. Manisha Soni, Dr. Liaquat Namole sir, we were all part of the team where we studied homeopathy together. We are classmates, and now each of one is excelling in their own fields. Dr. Manisha Soni is also the principal of Virar Homeopathic Medical College, and has been practicing homeopathy since 30 years now.
So over to you, Dr. Manisha Soni, The for most your sincere girl I've seen in my life. correct. And she was the topper of our class. Yeah. So it is our privilege to learn from her today. Also, she was a head girl in her school, if I remember. That was St. Patrick's. And she's the classmate of Arjun Rampal, if I remember it well. Right, Nishu? Yeah. So I And think we I'm shouldn't very let proud to be her brother, her friend. Uh-huh. Mashallah, she's very close to our hearts. Both of us, we three of us are very close friends, guys. So it's really, I feel very, I don't know where to laugh or what. I don't know. It's very fantastic to be together. But at this occasion of Guru Purnima, it is, so coming together is a great thing for all of us. Yeah, I'm sure our Guruji, our Guruji is same of three of us. Dr. Motiala sir will be very proud to see all the three of us together, Yes. actually. Yes. And I wish all my classmates come together with us, those who want to practice one with me. Of course, many of them call me, and because they must be calling both of you girls also. I have the privilege to call both of these ladies girls. Okay, nobody else can call them girls. And I'm really, guys, jokes apart, this is a very serious thing. Nishu is the girl, Manisha madam is the girl I always look up to. This is the girl I always wanted to be like as a person. Even now, she's a benchmark of sincerity, integrity, honesty, morals, loyalty, independence, and dignity for me. Always, always look up to her. Very motherly, mashallah. Really, I'm yet to see a girl like her who's so sincere and with a woman of substance, I would say. Seriously, Nishu, I'm very proud to be your brother. Thank you. Yeah. All right. Yes, thank you so much, and wishing best wishes. Though we call, we call you Liaquat bro and all, but then you have been instrumental in bringing us to Mind Method. So definitely you deserve the best wishes on Guru Purnima. So best wishes and blessings from my end to you. And lot I have learned after coming into Mind Method, and I know how you just pulled me into it. I still remember that day, and I'm always would be very forever grateful. So the case that I'm going to share today is a tribute to you, because the way you have shared whatever is your knowledge and whatever you have learned without hesitating even twice, you have always shared it very openly. So this is a tribute to you. So I'll just share the case directly. So this is a case of a patient aged 64. He came for complaints of asthma. और वो अभी जैसे ये पेशेंट महाराष्ट्रियन है, तो थोड़ा मैं मराठी हिंदी मिक्स करके बताती हूँ. वो अंदर आए और उन्होंने मराठी में बोला की सो एंड सो पेशंट, मतलब उन्होंने किसी और पेशंट का रेफरन्स देके बोला की मला त्यांनी तुमच्याबद्दल सांगितलंय, म्हटलं तुम्हाला दाखवून येतो. तो मुझे इस पेशेंट ने आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ. म्हटलं की ठीक आहे, आपको क्या हो रहा है, मतलब काय त्रास होतो. तो बोला की तसं काय नाही, मला दमा आहे आणि म्हटलं मग तुमचं काय गोळ्या वगैरे काय चालू आहे. सो ही सेड गोळ्या म्हणजे मी असा पंप घेतो, एंड देन ही ऑल्सो मेंशन कि जो मेडिसिन है वो लेते हैं. एंड एवरी टाइम व्हेन ही वाज टॉकिंग ही वाज डूइंग दिस. सो then I asked him की आप किती वेळा तुम्ही औषध घेतात. He said पंप मी रोज घेत नाही आणि गोळी मी रोज घेतो. म्हणजे असं काही पावसाळ्याचं वातावरण झालं जसं आता आहे, बिकॉज रेनी सीझन, रिसेंट केस, पावसाचं क्लायमेट झालं, क्लायमेट बदललं तर मला त्रास होतो. एंड चालताना मला थकवा लागतो, चलने में मुझे थकावट होती है, और ये तकलीफ मुझे बचपन से है, सिंस द एज ऑफ 13, और मैंने बहुत तकलीफ सहन करी है इसको लेकर. ऑयली खाना खाओ या कुछ फ्राइड खा लो तो मुझे वापस तकलीफ होती है.
और बोला जैसे ही मौसम बदलता है या मौसम ठंडा होता है, तब मुझे जल्दी से समझ में आता है, बोला यहाँ मुझे फील होता है कि मुझे तकलीफ होगी, और मुझे ठंडी भी बहुत जल्दी लगती है. सो अगेन ही सेड की ही रेफर्ड द पेशेंट्स नेम, की त्याच्याकडे गेलो होतो, मतलब मैं उसके पास गया था, और उसने बोला की मॅडम कडे जा आणि जाऊन भेटून या, म्हणून ऍड्रेस दिला आणि मग मी आलो. तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या फील होता है, आपको जो इतना तकलीफ है, दमा है, उसको लेकर आपको क्या लगता है मन में. तो बोला तसं काही नाही, मला हा त्रास लहानपणापासून आहे, मतलब मेरे को पहले से ही था. और फिर हमने गणपतीला नवस केला, मतलब उन्होंने मन्नत मांगी, और बोला कि तब से मेरा ये दमा जो है वो शांत हो गया. तो उनके ही सेड की आम्ही गणपतीला नवस केलेला, तेव्हापासून माझं जे शांत झालंय ते आता पण शांत आहे. मतलब उसको बहुत ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पहले आम्ही दादरला राहायचो, एंड देन ही नेम द प्लेस, कि उधर रहते थे, इधर रहते थे, ऑल दैट. स्मोकिंग भी करते थे, बट अभी वो बोला कि बीच में देयर वाज एन इंसिडेंट जहाँ पे उनको ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, तो उनको एडमिट करना पड़ा था. तो बोला की तेव्हापासून कानाला खडा लावला की आय विल नॉट स्मोक, असं. ओके, दिस इज हाऊ ही इज सेइंग. थोडं थोडं कधी कधी ड्रिंक घेतो. सो दॅट इज हाऊ ही इज एक्सप्लेनिंग. सो देन आई आस्क्ड हिम की हाउ, मतलब जेव्हा तुम्हाला त्रास होतो, जब तकलीफ होती है, तब आपका उस समय मूड कैसा होता है. तर बोललं तसं मला काही जास्त म्हणजे त्रास असं वाटलं मला, तर मी पटकन ते पंप घेतो, गोळी घेतो, मग आपलं शांत बसतो. तो मतलब अगर तकलीफ जैसा लगा तो वो उस समय फिर पंप लेते हैं, गोली ले लेते हैं, और फिर शांत बैठ जाते हैं. मैंने आस्क्ड हिम कि आपके नेचर के बारे में मुझे कुछ बताओ. तो ही सेड की मनाविरुद्ध काही झालं तर राग येतो, मन के खिलाफ अगर कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया तो गुस्सा आता है. तो मैंने बोला कि आप एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ पे गुस्सा आता है आपको. तो ही सेड की घरी, म्हणजे बायकोवरती. मी तिला चांगलं शिकवायला जातो, मैं उसको अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं. या कभी बेटा है, तो मैंने बोला फिर आप क्या करते हो. बोला मग बोलतो, चिडतो, मग मीच सांभाळून घेतो, समजून समजून घेतो, सांभाळून घेतो, की आपलीच माणसं आहे, मतलब अपनी फैमिली है, फिर मैं ही वो समझ के लेता हूँ. दैट इज व्हाट ही सेड. बाकी देन ही मेंशन्ड रिलीजियस फिगर, एंड ही सेड कि जैसे वो देयर इज अ ग्रुप ओवर हियर हु दे फॉलो that religious teachings, and they go to the temple. So वो बोला बाकी कलावती आईंचं खूप श्रद्धा आहे. मंदिरात जातो, मग पुस्तक वाचतो, पूजा करतो, काय असेल तर आई माझं करेल. दॅट इज हाऊ ही डिड. असं करून मी चालतो. तर आजपर्यंत तसंच आहे. तो बोला कि जो भी कुछ होएगा तो मैं मतलब मेरी वो श्रद्धा है, तो और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अभी तक भी उन्होंने ही संभाला, मतलब जो भी कुछ है तो मैं उनको ही बोलता हूँ, तो अभी तक भी वैसा ही है. सगळं काही त्यांनीच दिलंय, सब कुछ उन्होंने ही दिया है, ऐसा मैं समझता हूँ. तो मैंने फिर बोला कि दिवसभर में माझं वाचन असतं, मतलब वही रिलीजियस बुक्स का वो पढ़ते हैं, पूजा करायची. मग रिटायर झाल्यानंतर बोला कि मुझे पियानो सीखना था. सो ही गोज टू अ पेशेंट ओनली, तो जिनको वो सर करके बुलाते हैं. तो बोला फिर मैं वो भजन ही सीखता हूँ, मतलब जहाँ जाते हैं कलावती आइन से वही भजन सीखते हैं वो पियानो पे. पढ़ाई उनके बुक्स पढ़ते हैं और पूजा करते हैं. बोला थोड़ा टीवी देखता हूँ, ये मेरा मतलब दिस इज हाउ आई स्पेंड माय टाइम. मैंने बोला किसी और चीज का आपको टेन्शन आहे, काही आहे मनामध्ये. तो बोला की टेन्शन मला सगळ्या गोष्टींचा होतो, सब चीज का टेन्शन होता है, छोटी छोटी चीज का टेन्शन होता है. ही वॉज अ ड्रायव्हर इन अ कंपनी. सो ही सेड की गाडी बंद पडली तरी टेन्शन, बायकोने काय सांगितलं तरी टेन्शन, मुलाला नोकरी नव्हती त्याचं टेन्शन पण होतं. बोला कि छोटी छोटी चीज का मेरे को टेंशन होता है, कोई भी चीज का कुछ भी रहा तो मुझे ऐसा टेंशन आता है. और बाकी ही सेड कि अदरवाइज बोला मैं ज्यादा किसी से मिक्सअप वगैरह नहीं होता हूँ, अपना मतलब घर में ही अपना जो रूटीन है वही मैं करता हूँ. तो दिस इज द केस.
Yes, agar anybody would want to share, I went very simple in this, very simply, and whatever, there were certain symptoms which I even felt, um, like, this, it feel आया कि this also could have been, a part of the symptom. And uh, to be very honest, this is a recent case, and a remedy with a single dose, the patient is absolutely fine and doing very well. It's been like 1.5 months now. And so, though I have not gone into the metaphysics part of it, but I would definitely want to study more about the metaphysics of this case and correlate it with the symptoms and the rubrics that we have taken. So, very very simply, I have understood the case, and so simple learning with simplistic teaching. Yes. Anybody would like to share what they have understood from the case, from what I have just mentioned? Anyone? क्या समझ में आया ये केस में? क्या फील हुआ? कुछ भी जो फील हुआ, जो समझ में आया, वो आप शेयर करिए, बताइए. हेलो. यस. नमस्ते मैम. या. ये एक रिलीजियस बंदा लग रहा है, फैमिली मैन है, सिंसियर लग रहा है बात करने से, और थोड़ा सेंसिटिव भी है, एनवायरनमेंट से ये हो जाता है. लिटिल बिट टिमिडिटी मे बी देयर, क्योंकि सॉरी एंजाइटी इज देयर. छोटी छोटी बातों पे ऐसे एंशियस हो जाता है. तो मैंने लिया है मैम, रिलीजियस अफेक्शंस टू मच ऑक्यूपाइड विद एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम. लेकिन एंगर है बिकॉज ही इज लाइक ही इज केयरिंग फॉर हिज फैमिली, कि कुछ अच्छा करो, इम्प्रूवमेंट करो, उस वजह से उसका है ये एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम हिज. एंड एक्टिविटी डिजायर्स मैंने लिया है, क्योंकि कुछ म्यूजिक सीख रहा है, काइंड cares full of relatives about. So overall मैम, and gestures make the involuntary hand motion. ये मैम सल्फर जैसा फील. थैंक यू. Okay. Religious, yes, you're right, absolutely. So ये बात सही है. और फैमिली पर्सन है, राइट. और क्या आपको लग रहा है इसके अंदर? What gestures you took? Hands. Hands, gestures makes hands involuntary motion of. Why you took gestures make hands? मैम आप बोले ना स्टार्टिंग में कि वो नाक और स्पेक्स को ऐसे घड़ी घड़ी टच कर रहा था, कंटिन्यूस मोशन. So I thought maybe. नहीं, how the rubric is gestures makes hands involuntary motions of. तो वहां यहाँ पर वो हाथों का बहुत ज्यादा वैसा नहीं कर रहा था. I just give you a specific gesture. Okay. Good. Anybody else? गुड इवनिंग मैम. मैम ये टिक्स थे, इस तरीके से करना, उसको हम टिक्स कहते हैं, और इसका क्रॉस रेफरेंस में है जेस्चर मेक्स टिक्स नर्वस. Yes. आई डोंट नो कि ये यहाँ पे लगेगा या नहीं, बट ऐसा ही मैंने सीखा है. Right. और मैं और हमेशा इसमें कंफ्यूज होती हूँ. ओवरऑल ये हाँ, पर्सन कैसे है? मतलब हमेशा बहुत ज्यादा गॉड को बिलीव करते, तो वो रिलीजियस वो लिया, और वो किसी पेशेंट के कहने पर वो आया है, उसने वो करा है. तो आई डोंट नो कि उस पेशेंट का क्या ठीक हुआ. अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो फिर हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेंगे, अदरवाइज इम्प्रेशनेबल लेंगे.
उन्होंने कैसे बोला था स्टार्टिंग में कि ऐसा ऐसा सो एंड सो ने मेरे को आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा आपको तुम्हाला दाखवून येतो, आपको दिखा के आता हूँ, है ना। सो राइट बहुत सी बार जैसे पेशेंट अंदर आए, और जैसे सर ने भी एक चीज जो मैंने हमेशा लियाकत सर से सीखी है, इसकी एंट्री जो है पेशेंट की, यानी स्टार्टिंग में पेशेंट ने जो बोला या उस समय में भी उसको किस तरीके से हमने वो समझा, दैट ऑलवेज इज always and always is right most of the times. And also when the patient leaves, वो जो एक लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस बोल के जाते हैं, that also becomes very important. So this is where I understood it. So जैसे अभी पेशेंट ने आके बोला कि इन्होंने आपके बारे में बताया, तो मैंने म्हटलं तुम्हाला दाखवून येतो, सोचा आपको दिखा के आता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो पेशेंट को मतलब कैसा ठीक हो, क्योंकि उसने दोबारा भी केस के दौरान बोला है, फिर से बोला है कि सुनील ने मेरे को बोला, मैं गया था, सुनील को मैंने बताया, तो उसने बोला मॅडम कडे जा, भेटून या, एड्रेस दिला, मग मी आलो. सो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड इट. इम्प्रेशनेबल भी हो सकता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. यस. व्हाट रेमेडी आर यू थिंकिंग? सल्फर ही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि फैमिली पर्सन भी है, केयर भी कर रहा है, और उसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रॉब्लम भी है. ओके. फैमिली पर्सन बहुत सारे हैं ना, सल्फर के अलावा भी बहुत सारे फैमिली पर्सन हैं. ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सो ऐसे जब स्टार्टिंग में पेशेंट आपको बोलता है कि सोचता हूँ आपको दिखा के आता हूँ, वो आपको वो चीज को आप कैसे समझते हो? हेलो। हेलो. Yes. हाँ मैम, ये श्रीकिंग हेल्प फॉर हो सकता है क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि उसने बाद में भी बोला था ना कि थोड़ा सा, थोड़ी सी नहीं मैम, ये श्रीकिंग तो नहीं है. वाई? बिकॉज श्रीकिंग में एक ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे पेशेंट वो जताता है कि मेरे को ज्यादा कोई तकलीफ है नहीं, है ना, मुझे मतलब वो मदद भी लेनी है, बट वो जो जिस हम्म तरीके से पेशेंट बात करता है वो ऐसा है कि भाई आई डोंट वांट, आई डोंट रिक्वायर. तो गैम्बलिंग? यस. गैम्बलिंग पैशन फॉर मैडम, हाँ ले सकते हैं इसे. Yes, very good. This also I felt it as if it was gambling. Because patient क्या बोल रहा है आपको कि उन्होंने मुझे बताया, मतलब तुम्हाला दाखवून येतो, है ना, सोचा आपको दिखा के आता हूँ, तो आपको दिखा के आता हूँ और फिर जो होएगा वो देखा जाएगा. इट इज दैट अनस्पोकन सेंटेंस, सोचा आपको दिखा के आता हूँ. इट्स नॉट दैट वो मैं इसी ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, सोचा आपको दिखा के आता हूँ, मतलब ठीक हुआ तो हुआ, otherwise so I'll just taking a chance. So that is why even I have understood it as gambling. Yes. मैम वेरेट्रम हो सकता है क्या? ऐसा क्यों? वेराट्रम क्यों? क्योंकि मैंने रिलीजियस एफेक्टेशन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन, एक वो रुब्रिक लिया, एक एंजाइटी ट्राइफल्स फ्रॉम, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग, और लाइट डिजायर भी लिया, क्योंकि उसको जब भी तकलीफ होती है तब वो तुरंत पंप यूज करता है ना. और मुझे थोड़ा सा एफेक्टेशन भी लगा था तो. ओके. सो जैसे सर ने बताया कि आप पूरे पेशेंट को समझ के लो एंड देन यू एनालाइज द केस, और आप हर एक सेंटेंस को रूब्रिक मत बनाओ, है ना. सो जब आप उस तरीके से पेशेंट को समझते हो इन टोटल, देन
उसका वो जो state है, you are able to understand it in the form of a remedy. So let's not make convert every sentence into a rubric. But yes, gambling is right. So the first thing that even I took was gambling. So I guess many of you all are understanding it also in a right way. So since we have one more case, we'll go towards the analysis. So first like जैसे उन्होंने end करके बोला कि मतलब तुम्हाला दाखवून येतो. So here also I understood it as gambling. And कि मैं आप and then he started his explain करने लग गए. लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया कि हर बात में ये, so you all rightly pointed out कि this is tics. So I was trying to see कि सोच रही थी मैं ये कैसा है, तो बट ये चीज जो लियाकत सर ने बहुत अच्छे से बताई थी. एंड एंड देन जब मैंने वो टिक्स वाला रूब्रिक डाला, the remedy came out very clear in my mind कि this is how, and then other rubrics also matched, and that's how the remedy came out. So this is tics. Patient take particular action, he keeps doing this. ये उनका जैसे एक अपना तरीका है बात करने का. तो सर ने इसको कभी कभी अफेक्टेशन के साथ भी कंपेयर किया है, बट इन दिस केस मैंने अफेक्टेशन तो नहीं सोचा. आई वेंट थ्रू विद टिक्स. और ये जो पेशेंट ने इन जनरल जैसे बताया कि उनको बहुत टाइम से तकलीफ है, और लेकिन फिर वो जो उनका सोच था कि भगवान को वैसा प्रे करके या मन्नत मांग ली. सो ये जो थिंकिंग है, आई अंडरस्टूड इट एज सुपरस्टिशियस. देन रिलीजियस तो आप सबको इट इज वेरी कॉमन, जैसे उन्होंने बोला है कि मैं पूजा करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ. सो रिलीजियस अफेक्शंस, this is also what's the this thing. So Mansi, I'll request Mansi to share that chart which I had Mansi, if you can share the repertory. So this is, then I took a direct rubric about he said that when the weather is wet, बारिश होती है तो मेरे को तकलीफ होती है. तो जब यहाँ तो पेशेंट ने डायरेक्ट बताया है कि मुझे बारिश में तकलीफ होती है. So I just took generalities. Whether rainy season aggravates, then he is worried about his children. He is anxious about small things. गाड़ी बंद पड़ गई तो मेरे को तकलीफ, उसके लिए तकलीफ, religious everything. So this is arsenic. And yes, everybody who said sulfur is running very very close. और अगर हम लोग affectation के अंदर चले जाते तो we might have ended up in sulfur. Or the patient is doing very well with single dose of arsenic 200. His जो he said, he again जो भी second follow up के बाद है, he दमा माझा, जैसे उन्होंने word use किया था, दमा माझा पूर्ण बसला है. And then I also retrospectively understood is a part of talking business also, क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि अभी मेरे को ये हो रही, मुझे इसके लिए भी दवाई दे दो, अभी मुझे ये हो रहा है, इसके लिए भी जरा आप सोच के मेरे को दे दो. Or I may be wrong. I would like Liaquat to throw more light on this. When he initially started and he said कि मैं pump लेता हूँ, he did like this ना. So pump लेता हूँ, Rotocap, and उसका content बताया. Then he gave the name of the medicine, उसका power, वो सब बताया. So here I understood it as exacting too, because he was very very clear in explaining everything in detail. So though I haven't taken it for repertorization, but this is arsenic. Yes, Liaquat, if you can share and tell me if that exacting was right or wrong, I don't know. Yeah, exacting is there. Besides, arsenic is a careful person, we know.
Yeah. They're very careful about telling their things. So, So you we know, can broadly take it as careful. yeah. So better take it as careful because Yeah. then they take care that they tell everything to you as far as possible. You know, they will tell about the reports, they will tell about the Yes. medicines that they're taking, the parades that they're doing, you know. Yes. Yes. And that thing that you have taken, the generalities, whether any aggravates, that is nice, Rubrik. But word of caution again, better if you are if a patient is aggravated by any natural thing. हाँ. सपोजिंग कोई बोले कि मुझे केले से सर्दी होती है ना, मुझे मिर्ची से जुलाब होते हैं, ठीक है, तो पॉसिबली मिर्ची से जुलाब होना यू कैन रिलेट, ओके, बट कोई भी, बिकॉज रेन इज समथिंग दैट नर्चर्स यू, फ्रूट्स आर समथिंग दैट नर्चर्स यू. अबाउट स्पाइसेस तो उस पर तो डिबेटेबल है बिकॉज स्पाइसेस का बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं, बट ये चीजें हमको पता है कि फ्रूट्स है, रेन्स है, हवा है ना, ठंडी हवा, विंटर में सर्दी ठंडी हवा आनी चाहिए, समर में गर्म हवा आनी चाहिए. This thing should not make you sick. If they are making you ill, okay, then you should think about a rubric superstitious. Yeah, I have taken superstitions, but I didn't understand it superstitions in this angle. Rather, I took it like a direct. Nee, that is nice. Again, it's a study for us. हम लोग लेते हैं, Yes. we take Yes. it. कि how many are there, how many are not there. But many times it is a misleading thing. Remember. Okay. Got it. So avoid that rubric as far as possible. For academic purpose, keep taking it so that we have data vis-a-vis superstitions and what is there in the generalities. Okay. क्लासिकल वाले तो ऑफकोर्स लेके माइंड लास्ट में डालते हैं. जब हम लोग माइंड पहले लेते हैं. क्लासिकल प्रैक्टिस जब हम लोग करते थे, सो कॉल्ड क्लासिकल, जैसे एलोपैथ को मॉडर्न कहते थे, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं. जब सो कॉल्ड क्लासिकल वाले पहले मतलब 10-15-20 जनरलिटीज, जनरल आई मीन क्या कहते हैं उसको, फिजिकल रूब्रिक्स लेते हैं और फिर बाद में माइंड से कंफर्म करते हैं. हम लोग अब खाली एकेडमिक पर्पस के लिए फिजिकल रूब्रिक्स लेते हैं. ठीक है. No, but nice, fantastic. Arsenic, yeah, it appears like this thing. और दूसरा ये जो करते हैं ना ज्यादातर, ठीक है, मैं भी करता हूँ काफी बार, और मैंने काफी लोग देखे, काफी डॉक्टर्स, काफी टीचर्स को ये करते देखा मैंने, ये ऐसा, फिर ये ऐसा. एक्टर्स तो खैर वो स्टाइल करते हैं, शाहरुख वगैरह ये लोग ये करते हैं, वो तो स्टाइल होती है, वो मैं भी करता हूँ आजकल, शोज वोज में जाता हूँ. तो अदरवाइज जब मैं ये करता हूँ ना, तो दिस आई फील इज इंटेलेक्चुअल. ओके. ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान में, मतलब अपार्ट फ्रॉम टिक्स इज सर्टेनली देयर, नर्वसनेस इज देयर, छोटा रूब्रिक है, उसमें और रेमेडीज ऐड होगी. आप मार्क माय वर्ड, इन कमिंग नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट 50 or 30-40 रेमेडीज विल बी एडेड टू दैट, आई एम टेलिंग यू. और हाँ, टिक्स ये रूब्रिक कब लेना है मैं आपको बताता हूँ. ज्यादा इसमें तो है माशाल्लाह, बट द रूब्रिक इज टिक्स नर्वस. So whenever you have patient of nervous system, Okay. and you have this rubric coming, don't forget to take that. Okay. Okay, any nerve complaints, like if he's short tempered, है ना, आप लोग बोलते हैं getting on my nerves, है ना, if the person is short tempered, if he's aggravated by somebody, some talk, है ना, हातला खाली गेला बघा काय करायचं उसमें भी आपके ना पैरालिसिस है, फिर या वो क्या कहते हैं उसको, एकदम खाली कर डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह ये जो है, या फिर व्हाट यू कॉल पार्किंसन वगैरह है. तो जो भी बीमारियां नर्व्स को रिलेटेड है, तो ऐसे लोग आर वेरी प्रोन टू डिसीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम. सो ऑल द रूब्रिक्स वेर यू हैव, जैसे एक एंजाइटी नर्वस करके एक है, देयर इज वन मोर रूब्रिक, एंजाइटी नर्वस एंजाइटी, वो भी रूब्रिक बहुत अच्छा है. तो जिन जिन को नर्वस सिस्टम की बीमारियां होने वाली है, जितने भी ये है नर्वस वाले रूब्रिक है, मार्क माय वर्ड, ये रेमेडीज, मतलब इनमें से ही आपको ज्यादातर पार्किंसन वगैरह के मिलेंगे. Okay. ठीक है. वन मोर थिंग जो मैंने अपनी बुक में भी बताया था, आई हैड गिवन दिस टू माय वन ऑफ माय टीचर्स, ही हैड दिस हैबिट ऑफ टिक्स. Yeah. सो आई हैड गिवन हिम आर्स मेटालिकम व्हिच हैज क्योर्ड हिज ब्लड प्रेशर माशाल्लाह. ठीक है. So if the person is metallic, like you know, a man of solid, yeah. So फिर then if arsenic is coming, try arsenic metallicum. I think I have written that in my book also. Yes. Thank you. I know why you took arsenic, because my book has arsenic, explained arsenic.
The arsenic you've explained very nicely in that book, and because of that, I was able to understand tics versus affectation. Because in one of my diabetic cases, which I had earlier discussed with you, the same kind of gesture of the shoulder was understood as affectation as a whole, whereas in this case we understood it as tics. That is what I think. So that's the reason I said that you will be able to explain better between tics and affectation. So I think case to case basis, we'll have to understand it like that. Salman करता ना ऐसे ऐसे चलते थे. That is affectation. Yeah. You see Salman Khan doing this action. That is affectation. And he's doing Thank it. you. Yeah. Thank you. Fantastic case, Nisha. Over to Mansi then now. Over to Arva. Over to Arva. Arva. Yeah. Arva is the hostess. Oh my God. Idhar hai Arva? Acha, chini Yes, khao. yes, I'm there. I'm there. You're there, bro. Is there? Yes. All right. So thank you so much, Dr. Manisha. It was really insightful. And thank you, Dr. Liaquat, for giving more light on the case. So now we have another doctor. We have the second speaker, Dr. Mansi Patil. She is from Kolhapur, Maharashtra, and she passed her BHMS in 2003. She's from Srimati Venubai Yashwantrao Chauhan Homeopathic Medical College. She has a vast experience and practicing homeopathy from past 22 years. She has a clinical practice of 22 years and is practicing homeopathy since 10 years. So she has a very deep understanding of the rubrics, famous for her daily sharing of the rubrics on various platforms like WhatsApp, Telegram, and Facebook, and she has got thousands of followers. So over to you, Dr. Mansi, for new learning and having the case, sharing the case. Yeah, again, one more thing about Mansi is that we call her Bachchan of PHF. Okay. Oh, ठीक. तुझं ते कॅमेरा पुस म्हणे थोडासा घुसवला. नाही ते तसंच आहे अच्छा. जुनं झाले ते बरं, ठीक. All right. मी काढतो माझा स्पॉटलाइट. ऐश करो. Okay. Thank you so much Arva madam. Thank you for a lovely welcome. Thank you Manisha madam for sharing a wonderful case. And I feel privileged, honored, blessed, and happy to share my feelings and my experience, my little learning today on this auspicious occasion of Guru Purnima. So thank you is, as I always say, thank you is a little word for sir. So, but still I take this opportunity to thank you, sir. Thank you so much. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब ने अपने गुरुओं को याद किया. So today also we will remember all the gurus from whom we are learning. So we are grateful for the gurus, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Yogesh Sehgal sir, late Dr. Vijayakar sir, late Dr. Mohanty sir, and my mentor डॉक्टर लियाकत सर जिनसे हम डेली सीखते हैं. सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर whatever I have learned through the years. So सर हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा मतलब वर्ड्स मत यूज किया करो, एक्शन से जो भी करना है वो दिखाओ. मतलब ये सर को प्रेज वगैरह ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है. तो हम जो भी सर से सीखे हैं इतने सालों में, तो एक केस है मैं शेयर करना चाहती हूँ. स्क्रीन शेयर करती हूँ. दिख रहा है? हेलो. Yes. सो ये केस है. एक मेल पेशेंट था, 58 ईयर्स उनकी एज थी. तो उनको कंप्लेंट्स है, एलर्जिक राइनाइटिस है उनको, और वो भी 20-25 साल से है. और
वो जब भी मेरे पास आए तो उन्होंने वो मतलब ईएनटी के पास जाके आए थे, और उनके कुछ एंटीबायोटिक्स का कोर्स चल रहा था। तो उन्होंने शुरुआत ऐसे की कि मैं ईएनटी डॉक्टर के पास जाके आया हूँ, और मेरी एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो क्या हम इसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं क्या, या फिर मैं बाद में आऊँ, मतलब मेरा कोर्स पूरा हो जाने के बाद में आऊँ। तो मैंने बोला नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। तो फिर उनका वो उसके ऊपर वो कहना था कि मेरी एंटीबायोटिक चल रही है, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से दवा से मुझे असर मिल रहा है, एंटीबायोटिक से हो रहा है या आपकी दवा से हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में आ जाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा उनको एक ये दे दिया, जो सर भी हमेशा बोलते कि ये दोनों चीजें मतलब मिक्स नहीं होंगी, होम्योपैथी और एलोपैथी कभी मिक्स नहीं होंगी, वो अपना अपना काम करेगी। तो आप निश्चिंत रहिए। जैसे बाय रोड या फिर रेलवे और एरोप्लेन का हम एग्जांपल देते हैं, तो होम्योपैथी ऐसे काम करेगी, ऐसा मैंने उनको थोड़ा सा बोल बच्चन दे दिया। तो फिर आगे जाके वो बोले कि ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कब से है आपको ये तकलीफ, कब से है? तो बोले कि बहुत मतलब 20-25 साल तो हो गए। तो मैंने बोला कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज की? तो बोले कि शुरुआत तो याद नहीं, लेकिन ऐसे ही हुआ था कि सर्दी है, ऐसे मैंने सोचा था, खाली सर्दी है, इतना ज्यादा मतलब क्या क्या ही होगा। तो इसलिए मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, तो ठीक है वो ऐसे, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ही इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि एवरी 3 मंथ्स, मतलब एंटीबायोटिक लेने के बाद भी मुझे तकलीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा स्नीजिंग और ये सारी चीजें। और फिर मेरा स्मेल चला जाता है, कुछ भी मुझे मतलब किसी भी चीज का मुझे स्मेल नहीं आता है, ऐसे ऐसी मेरी हालत हो जाती है। और फिर उन्होंने बोला कि अभी जो है, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ली, मतलब सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है हमारे होम्योपैथी के साथ कि पेशेंट सब चीजें करके फिर अपने पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक सीनियर होम्योपैथ है मेरे ही एरिया में। तो वो बोले कि मैं उनके पास भी गया था, और उनके पास जाके उनके पास मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। इसके लिए मैंने सोचा कि अभी वो ट्रीटमेंट मैं बंद करता हूँ। तो 6 महीने तो मैंने बोला कि क्या हुआ था? तो वो बोले कि होम्योपैथी में ऐसे ही होता है, ऐसा क्यों आप लोग करते हो? मैंने बोला क्या करते हैं हम लोग? तो बोले कि आप मतलब टेस्ट एंड ट्रायल करते हो पेशेंट पे, कि अ, ये दे के देख लेते हैं, ये मेडिसिन देख लेते हैं, उसके बाद आप फिर ट्राई करते हो, फिर ट्राई करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? तो उसकी वजह से मुझे रिलीफ नहीं मिला, ऐसा उनका कहना था। और बोले कि मेरी बीमारी तो वैसी की वैसी रह गई, मेरा पैसा भी बेकार चला गया, 6 महीने तक उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। ठीक है। और दूसरे फिर उन्होंने बोला कि ईएनटी के पास गए थे, उसके बाद वापस वो ईएनटी के पास भी गए थे। तो उन्होंने उनको स्टीरॉयड का स्प्रे दिया था इनहेल करने के लिए, ताकि वो उनको रिलीफ मिले, मतलब फौरन रिलीफ मिले ऐसे। तो उससे भी उनको क्या हुआ, रिलीफ नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाती थी, नाक सूख जाती थी और खुली रहती थी। लेकिन उसके बाद क्या, वापस वही, मतलब जब ये हो जाता है, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद फौरन उनको फिर से जुकाम चालू हो जाता है, फिर से वो एलर्जिक, मतलब वो स्नीजिंग वगैरह चालू हो जाती है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या होता है, मतलब बीमारी को लेके आपके मन में क्या लगता है? तो उन्होंने बोला कि पहले तो चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब 3 महीने में बार बार होने लगा है, इसलिए डर लगता है कि इसका इलाज होगा भी नहीं, होगा या भी नहीं। लोग कहते हैं कि जुकाम तो छोटी बीमारी है। तो अभी उनको पता चला कि जुकाम छोटी बीमारी नहीं है। ठीक है। तो और मैंने पूछा कि क्या और क्या तकलीफ होती है? तो और उनको पेट के भी, कब्ज की भी तकलीफ होती है। तो वो उसके लिए कुछ इसबगोल लेते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है। तो ये तो हो गया डॉक्टर। और क्या होता है? तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि
कमजोरी होती है, शरीर में बहुत कमजोरी आती है और मुझे फ्रेश नहीं लगता। जैसे मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ, तो बीमारी के वक्त मुझे ऐसा फ्रेश नहीं महसूस होता, और वो स्मेल वाली बात भी उन्होंने बताई। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। ये उसके बाद में पूछा कि आप क्या करते हो, मतलब काम क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जिला परिषद में डेस्क ऑफिसर था, 4 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे, आप मतलब रिटायर्ड लाइफ आप कैसे गुजारना चाहते हो। तो बोले कि कुछ नहीं, अभी तो मुझे पेंशन मिलती है, 50,000 पेंशन मिलती है, अब मैं आराम से रहना चाहता हूँ अभी। और मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वो म्यूजिक का जो सिस्टम रहता है, वो सिस्टम उन्होंने लगवा लिया है, म्यूजिक के लिए अलग और मूवी देखने के लिए अलग। ये मूवी का भी उनको शौक है। तो मैंने पूछा कि कौन सा म्यूजिक आप पसंद करते हो। तो बोले कि सारा म्यूजिक, मतलब कोई भी म्यूजिक हो मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा उनको कि आप गाते भी हैं या फिर सुनते हैं सिर्फ। तो बोले कि नहीं, मैं बस सिर्फ सुनता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने गा देता है तो उसकी गलतियां मैं निकाल सकता हूँ। तो ये बात मतलब हंसने लायक थी। और दूसरा शौक उनका है कि फिल्में देखते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक सिस्टम लगवाया हुआ है घर पे। और और एक बात उन्होंने बताई, तो मैंने उनको बचपन के बारे में थोड़ा सा पूछा कि बचपन कैसे गया था। तो बोले कि किस चीज के बारे में आपको जानना है। तो मैंने बोला कि ऐसे ही, मतलब इन जनरल आपका कैसे था। तो बोले कि बचपन तो ठीक था, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक था। लेकिन मेरे पिताजी जो है वो स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने बोला ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मतलब क्या, मतलब स्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा सा उनका ये डिसिप्लिन वाला कल्चर था। तो पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था सबसे, मतलब हर बार पढ़ाई में मेरा स्कोरिंग वगैरह वो सब अच्छा था। सो और जो स्लीप पोजीशन हम पूछते हैं वो भी पूछा कि किस तरह से आप सोते हो। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर बाई करवट पहले सोते हैं। हाँ, और एक बात जो उन्होंने बताई कि बीमारी के दौरान मूड कैसा होता है, ये हम हमेशा पूछते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा मूड खराब होता है, हमेशा फ्रेश रहता हूँ। तो वो जो ताजगी है वो नहीं रहती है जब भी मैं बीमार होता हूँ तो। ठीक है। और एक बात उन्होंने बताई कि मैं बहुत ही लेकिन मैं उसका असर खुद पे नहीं होने देता, मैं ज्यादा खुद को परेशान नहीं करता। अगर मेरा मूड खराब भी हो जाता है तो मैं वैसे ही मतलब ठीक रहता हूँ, ऐसे कुछ ये नहीं करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो मैंने इसके बारे में पूछा पॉजिटिव का मतलब क्या, मतलब क्या आपका मतलब क्या है उसे। तो बोले कि मेरे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई, ऐसी परिस्थितियां आई कि जिसको लेके अगर कोई दूसरा इंसान होता, मेरे दोस्त भी ऐसे बोलते, अगर हम तेरी जगह पे होते तो शायद हमने सुसाइड कर लिया होता, लेकिन तूने इतने अच्छे से वो सिचुएशन को संभाला है। तो वो है, मतलब वो मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं रहता हूँ, मतलब कठिन भी परिस्थिति हो तो मैं सकारात्मक दृष्टि से किसी भी चीज को देखता हूँ। ये सारी चीजें है। तो ये केस है। आप बताइए आपको क्या लगता है, किसी को बोलना है? लेट अस डिस्कस। और इनका फॉलोअप बहुत अच्छा है, मतलब ये 6 महीने से मेडिसिन ले रहे हैं। और उसके बाद में जब भी फर्स्ट फॉलोअप में आए, मतलब 1 महीने के बाद मैंने उनको बोला था आने के लिए, तो फर्स्ट मंथ में ही उनको इतना अच्छा रिलीफ मिला। और उसके बाद में 3 महीने के बाद जब वो वापस आए, 3 या 4 महीने के बाद, तो उन्होंने बोला कि मैंने जब से आपकी मेडिसिन स्टार्ट करी है तब से एंटीबायोटिक कुछ नहीं ली है, और मुझे इतना ज्यादा रिलीफ मिला है कि आई एम हैप्पी विथ योर ट्रीटमेंट। और बहुत अच्छा है, मतलब वो जो इतनी सालों से परेशानी थी, तो वो 3 4 महीने में ही, मतलब बहुत ज्यादा 90 to 99% मुझे रिलीफ मिला है। तो आई एम हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। ये भी उनका फीडबैक था। तो ये फॉलोअप है।
बहुत ही सिंपल केस है, हेलो जैसे मनीषा मैडम ने बताया वैसे ही सिंपल ही है। यस। हेलो यस नमस्ते डॉक्टर मैम। मित्तल। मैम ये थोड़ा इगोइस्टिक पर्सनालिटी लग रही है, एकदम ओपनली सब आपसे बात कर रहा है, इवन इफ ही डज नॉट लाइक फ्यू थिंग्स। तो मैंने लिया है डेल्यूजन परसिक्यूटेड, तो लगा पहले, बहुत सालों से है, और ही इज डिस्क्राइबिंग कि कैसे वो उसका डिजीज प्रोग्रेस होता है, क्या क्या होता है। तो एंड डाउटफुल रिकवरी ऑफ coryza accompanied by loss of smell, dullness, coryza during egotism. ओके। थोड़ा नक्सोमी का टाइप पर्सनालिटी। ओके। ईगोटिज्म क्यों ले रहे हैं आप? आप जो नरेट कर रहे थे तभी मैंने ये किया था मैम। हाँ, वो बोला ना कि म्यूजिक की मैं खामियां निकाल सकता हूँ, मैं खुद तो नहीं अच्छा। सोच सकता। ओके। और भी वन मोर लास्ट थिंग आई फॉरगॉट। तो उसको सेंसोरियस क्यों नहीं लिया आपने? गलती हाँ निकालने को सेंसर बोलते हैं हाँ, ना? या सेंसर। या फिर क्रिटिसाइज बोल सकते हैं। हाँ, और दूसरा क्या बोला आपने? इगोटिज्म और egotism, dullness, परसिक्यूटेड बोला। persecute। परसिक्यूटेड तो परसिक्यूटेड यहाँ पे कैसे आएगा? मतलब अगर एक बंदा 20 साल से एक ही परेशानी से परेशान है, तो ये मतलब कॉमन होगा या फिर अनकॉमन होगा? पिक्यूलियर सिम्टम होगा ये? पिक्यूलियर नहीं होगा मैम। तो क्यों लेंगे हम? एसएसयूपी लेना है ना हमको। स्ट्राइकिंग क्या लगा इसमें? बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग क्या लगा? सिंगुलर क्या है, पिक्यूलियर क्या है? यूनिक, यूनिक होना चाहिए ना कुछ तो। टॉकिंग बिजनेस टोटल ऑफ भी लिखा कि टॉकिंग मैंने बिजनेस ले सकते हैं। मेडिसिन लिया और पैसा ये हो गया, यस पर यस, टॉकिंग फायदा नहीं बिजनेस आप हुआ। ले सकते हो। यस। वो टॉकिंग बिजनेस ऑफ डाउटफुल रिकवरी ऑफ ओके। कोराइजा accompanied by loss of smell। परसिक्यूटेड से मुझे लगता है उल्टा परसिवरेंस सोचना चाहिए था आपने। ट्रीटमेंट छोड़ा नहीं है ना? हाँ, बेटर वी कैन टेक परसिवरेंस ना। यस मैम। एनीवेज, एनीवेज आपका एनालिसिस बताइए, रेमेडी क्या है आप बताइए। नक्सोमिकल। नक्सोमिक, ओके ओके, ठीक। और कोई? और एक बात बताना मैं भूल गई, उनको अखबार पढ़ने का या न्यूज़ देखने का भी शौक है। तो वो बोले कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ और पूरा अखबार पढ़ता हूँ, और जहाँ से मिल जाए मुझे नॉलेज, मुझे जहाँ से मिल जाए वो मैं वो मराठी में बोलते हैं, मैं प्राप्त करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब वो मराठी में भी ऐसे बोलते हैं, प्राप्त करने मला आवडते, मुझे जहां से मिल जाए वहां से। मतलब वो जो सबटाइटल्स भी आते हैं, अगर कोई मूवी देख रहे हैं अलग भाषा में तो वो सबटाइटल्स आते हैं, तो वहां पे अगर कोई वर्ड आता है जो इनको पता नहीं है, तो वो डिक्शनरी लेके या फिर गूगल में जाके सर्च करते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो बोलते हैं कि जहां से भी मिल जाए मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। ये एक चीज है। सारी चीजें आप उसको कंसिडर करो, जैसे मनीषा मैडम ने भी अभी बताया। हेलो। जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, इस केस में जो है ना, हर चीज वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से करता है। वो पेशेंट म्यूजिक सिस्टम भी लगाए हैं, तो हर चीज के लिए अलग अलग लगाए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट भी कराने आए हैं, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके नहीं नहीं, एलोपैथिक पहले करवाएंगे,
इसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब फिर हम होम्योपैथ करवाएंगे। तो ये बहुत ही इस केस में इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा पर्सनालिटी है जो कि हर चीज को बहुत ही प्रॉपर ढंग से इंडिविजुअल और मिक्सअप नहीं करना चाहता, यानी जो भी उसका करने का तौर तरीका है बहुत ही अच्छे ढंग से करने का है। तो ये एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज ये जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो पहले प्रीवियस होम्योपैथ के पास में गए ट्रीटमेंट लिए, तो उनकी बात जो थी, जो चीज समझ में आया, बिल्कुल वो स्पष्ट रूप से बोल दिए, उसमें कहीं लेकिन परंतु वाली बात नहीं थी। तो एक ढंग से क्रिटिसाइज भी किए तो सेंसोरियम उसको समझ पाए हैं। म्यूजिक से उन्हें लगाव है, म्यूजिक में उन्हें सॉन्ग को गा नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पे जो प्रॉब्लम, जो गलती फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर इसमें जो चीज है, स्लीप पोजीशन इनका इम्पोर्टेंट है, स्लीप पोजीशन लेफ्ट साइड। तो ये सब चीजें और इनका पेरेंटिंग जो हुआ है एक डिसिप्लिन वे में हुआ है। तो ओवरऑल अगर जो हम समझ पाते हैं तो 3 रुब्रिक्स को हम लिए हैं। पहला सेंसोरियस, दूसरा जो है इसमें प्रॉपर टू, तीसरा स्लीप पोजीशन लेफ्ट साइड। तो सल्फर समझ में आ रहा है, फिर आपसे सीखेंगे मैम। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने। और कोई? और किसी को बोलना है या फिर डिस्क्लोज कर देते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आया, ये टॉकिंग बिजनेस तो आया था, लेकिन वो जो उस तरीके से जो बोला उन्होंने कि मेरा पैसा भी गया। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। आप होम्योपैथ लोग ट्रायल करते हो, मतलब क्या कि आप गिनी पिग की तरह यूज करते हो पेशेंट को, ऐसा मतलब वो ये जो फीलिंग होता है वो एक रेमेडी में होता है। कौन से रेमेडी में होता है? तो वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो वो हायोस ज्यादातर ऐसे बोलते हैं ना। तो मुझे उस जगह पे हायोस का फील आया था। लेकिन ये टॉकिंग बिजनेस तो है, टॉकिंग बिजनेस हायोस में भी है और इस रेमेडी में भी है। तो दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट कि उन्होंने इतना सारा बताया है ना, मतलब पेंशन भी बताई। मैंने पूछा नहीं उनको कि आपको कितनी पेंशन है, तो उन्होंने पेंशन भी डायरेक्टली बता दी मुझे कि 50,000 मेरी पेंशन है। मैं जिला परिषद में डेस्क ऑफिसर के इससे रिटायर हुआ हूँ, मतलब मेरी पोस्ट जो थी वो डेस्क ऑफिसर की पोस्ट थी, उससे मैं रिटायर हुआ हूँ। 50,000 मेरी पेंशन है। और जो सिस्टम का उन्होंने बताया, 1 लाख रुपए का सिस्टम उन्होंने लगवाया है, म्यूजिक के लिए अलग और मूवी देखने के लिए अलग। तो ये सारा क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये सारी चीजें हम किसको बोलते हैं? वेल्थ मैम। वेल्थ है। डिलीजन तो में वेल्थ क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? तो सिंपल रुब्रिक था, डिल्यूजन, वेल्थ ऑफ, टॉकिंग बिजनेस। और और ये सारी चीजें वो क्यों करना चाहता है म्यूजिक, और वो मैंने पूछा उनको ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड भी पूछा मैंने। क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं क्रॉनिक केसेस में हम थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में पूछते हैं। तो चाइल्डहुड का जो है मतलब वो म्यूजिक उनको अच्छा लगता है या फिर ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए मुझे लगा कि शायद ये कार्सिनोसिन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको चाइल्डहुड के बारे में पूछा। और म्यूजिक का मतलब वो गाना भी चाहते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी की भी निकाल सकता हूँ, मतलब गलती निकाल सकता हूँ। तो वो सेंसोरेस आप ले सकते हो, सेंसोरेस नहीं लिया मैंने। लेकिन ये जो उनकी चीज है दैट इज अम्यूजमेंट डिजायर, है ना। मतलब उनको पसंद है वो सारी चीजें, मूवीज, और ये किसको पसंद होता है जिसको वो अम्यूजमेंट उसमें दिखती है ना। तो वो सारी चीजें अम्यूजमेंट डिजायर में आती है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि मैं, मुझे ये सारा मतलब नॉलेज अभी भी चाहिए।
मतलब मैं जहां से भी मिले, मैं सारा नॉलेज, मतलब मुझे भी उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, तो वो क्यूरियस भी मैंने लिया था, लेकिन उसके लिए एक और रुब्रिक है, दैट इज लर्निंग डिजायर फॉर। मतलब इनको इतनी ज्यादा चाह होती है कि वो सीखते रहते हैं, हमेशा सीखना उनको पसंद होता है। तो ये एक रुब्रिक है जो कि बहुत यूज कर सकते हैं आप लोग, लर्निंग डिजायर फॉर। और एक चीज और है जो ये रुब्रिक सर ने सिखाया है, कि उनको जब मैंने पूछा कि आपका क्या है, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपका ये क्या है, मतलब आप क्या, कैसे जीना चाहते हो। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि जॉब मेरी अभी हो चुकी है, मुझे इतने सारे पेंशन है, और अभी मैं आराम से जीना चाहता हूँ। मतलब मुझे मेरे जो शौक है वो सारे मैं पूरे करना चाहता हूँ, और मैं आराम से जीना चाहता हूँ रिटायर्ड लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिया था केयर फ्री। मतलब उन्होंने सारा अपना किया है, योगदान दिया है जो भी फैमिली के लिए होता है, केयर करके अभी वो फ्री हो गए हैं। तो ये भी एक शेयर करना था मुझे, रुब्रिक इम्पोर्टेंट। और उनका जो बोलने का तरीका था ना, तो मराठी में अगर आप सुनते तो उनका जो हम बोलते हैं न को न बोलते हैं वो लोग, मतलब खाने पीने जाने उठने ऐसे, मतलब उनकी वो एक टीचर के जैसी लैंग्वेज होती है ना, तो वो उनकी लैंग्वेज थी। तो उसके लिए जो हम हमेशा रुब्रिक लेते हैं अफेक्टेशन, वो मैंने लिया था, लेकिन वो प्रिस्क्राइबिंग नहीं लिया, खाली कंफर्मेशन के लिए लिया था। तो ये सारा मिला के द रेमेडी इज सल्फर। तो सल्फर 30 दिया था उनको मैंने, और उसके बाद मुझे 6C देना पड़ा बाद में, पोटेंसी चेंज करी थी, लेकिन 6C से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिली है। तो उसके बाद से मैंने मेडिसिन रिपोर्ट नहीं की है, SLP ही है वो। मतलब अभी 6-7 महीने हो गए, फरवरी में उनका फर्स्ट कंसल्टेशन हुआ था। तो उसके बाद में अभी तक उनको तकलीफ नहीं हुई है एज सच, मतलब जो कि बहुत ज्यादा उनको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी, और ENT डॉक्टर ने उनको बोला था कि तुम अब मेरे पास मत आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी मेडिसिन नहीं है। जो भी एंटीबायोटिक मैं आज तक तुमको प्रिस्क्राइब करते आया हूँ, अगर तुमको जरूरत पड़े तो तुम जाके केमिस्ट से ले लो, और मेरे पास मत आओ। आई डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर यू नाउ। आपको मतलब आप ले लो, अगर तकलीफ होती है वही मेडिसिन ले लो, खा लो, आराम मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो आप दूसरा कुछ ट्राई कर लो, ऐसा ENT डॉक्टर ने उनको बोला था। तो ये चीज भी उन्होंने इसमें बोली थी। तो ये सारा मिला के सल्फर दिया था। सो दिस वाज द केस। थैंक यू लियाकत सर वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर तुम्ही काही ऍड करणार? हेलो। सर तो क्या करना है, फंटास्टिक है। मतलब वो जब ही मुझे तो तभी समझ में आ गया था, वो जब बोला कि मुझे वर्ड्स सीखना अच्छा लगता है, और वो सब सबटाइटल्स आते तो वहां से वर्ड सीखना अच्छा लगता है। फैंटास्टिक। सल्फर तो हम लोग यार माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत फटाफट पकड़ते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ कभी कभी, या मेरे पास स्टूडेंट जो आते हैं पढ़ने, तो वो पकड़ते हैं स्टूडेंट्स, माशाल्लाह बहुत मजा आता है। और वो ऐसे बैठे थे, ऐसे मतलब और ऐसे ये होता है सल्फर। काफी बार प्लेटिना भी ऐसा बैठता है। ठीक है, ये भी याद रखो। तो सल्फर लेकिन बढ़ता है ऐसा, एकदम ऐसा बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, हम लोग बोलते हैं बुद्धिजीवी है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। सल्फर सबसे माशाल्लाह बहुत मजा आता है, सल्फर के साथ बहुत मजा आता है, बहुत मिलते हैं। क्योंकि मैं अभी पोएट्री वगैरह करता हूँ, तो मुझे तो बहुत मिलते हैं, लाइक क्रेजी। आई एंजॉय आई एंजॉय द कंपनी। तो बहुत जगह पे बहुत मजा आता है। मतलब रात में तो बहुत मजा आता है। क्लासमेट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं सल्फर। Seriously, I think I somewhere I told, I don't remember. When I used to take the offline lectures and I used to explain. Sulfurs make very good grandparents because they have a lot of stories to tell to their
grandchildren, and even their kids, they make very good grandparents. I tell you, if you have your father to be a selfer, your mother to be a selfer, and if you have your small kids, you should be very grateful for. Let them let them sit besides your kids when they are about to sleep. They would tell them nice stories, and they have a lot of collection of stories and memories. And if they have the habit of reading books or watching movies, they are one of the nicest grandparents I have seen in my life also. Okay. बाकी तो मजा है सेल्फ का तो सबसे ज्यादा पेजेस है ना आई थिंक सबसे ज्यादा पेजेस दिए डॉक्टर केंट साहब ने भी अपने लेक्चर्स के अंदर और थैंक यू सिंस इट्स अ टीचर्स डे you both have taught teachers remedies. See, the sulfur is one of the main remedies that you find in teachers. Okay, very principled teachers, very close to lycopodium. Okay, one thing that I want to tell you people: if you see the constituents lycopodium. अगर आप पढ़े मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था बट lycopodium contains lot of sulfur in it. अगर उसका हम वो देखते हैं ना कि क्या क्या है उसमें जैसे सैनिकुलर बहुत सी रेमेडीज है तो उसका अगर हमने देखा क्या क्या कंटेन्स है उसके अंदर तो lycopodium clavitum also has lots of sulfur in it. That is why many times lycopodium seems like sulfur. ठीक है, one of the great personalities in India was sulfur, now lycopodium. आप लोग सब जानते हैं सब कुछ इसने छोड़ो सब लोग जानते हैं कौन है वो मतलब जिनको वर्टिकल लाइंस है और जिन सबको अपना दोस्त मानते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सल्फर कूट के पड़ा हुआ है क्योंकि वो भी बहुत अजीब अजीब बयानात देने के लिए जाने जाते हैं. Anyways, it's a teacher's day. Let's have fun, guys. Thank you very much. My Ashwini, अच्छा, one more. Somebody else is also there. नहीं, vote of thanks. Concluding. किसी ने पूछा है वो जो बोल रहे थे कि कौन से मेडिसिन से फर्क मिलेगा तो वो जो है इंटेलेक्चुअल बोल सकते हो या फिर इंटेलिजेंट बोल सकते हो. इंटेलिजेंट लोग ही ऐसा सोचते हैं. किस चीज का मेडिसिन मतलब उन्होंने बोला था कि एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, एंटीबायोटिक्स चल रही है तो एंटीबायोटिक्स खत्म होने के बाद मैं आ जाता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन से मेडिसिन से फर्क लग रहा है. मुझे आपकी मेडिसिन से अगर फर्क मिल रहा है या फिर उस मेडिसिन से मिल रहा है तो वो समझ में आना चाहिए. दिस इज इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट क्यूरियस टॉकिंग बिजनेस ऑल टुगेदर. तो इस पर से कुछ लेना नहीं है आपने, ठीक है, बट ये सच में एक लॉजिकल है ना, तो एक रूब्रिक है ना फिलोसफी एबिलिटी फॉर्म. तो जहां पर भी आपको लॉजिकल कोई बंदा लगे और आपको बात कन्विंस कर पाए, इट इज वेरी जब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से थोड़ा ज्यादा रीजन पावर इंक्रीज के बहुत करीब होते हैं ये लोग बट ये लॉजिकली बहुत सॉलिड होते हैं तो दैट यू कैन टेक एज फिलोसफी एबिलिटी फॉर दे हैव द एबिलिटी. ओके, पावर ऑफ रीजनिंग के अंदर एक रीजनिंग पावर होती है कि जैसे है ना कि डॉक्टर साहब जैसे मैं बताता हूँ ना कि मेरे पास में आर्टिकल की केस थी आती थी था बहुत है वो बोलता था कि डॉक्टर साहब देखो मुझे आर्टिकल की तकलीफ लास्ट ईयर हुई थी, ठीक है, अभी भी हो रही है 3-4 बार. मैं ये नोट किया डॉक्टर साहब कि उस वक्त जब हुई थी जब मैं दिल्ली में था तब मैंने पहाड़गंज में एक ढाबे में खाना खाया था तो वहां पर भी मैंने तंदूर रोटी खाई थी, ठीक है, अभी भी मैंने खाया हूँ डॉक्टर साहब 4 दिन से मैं मतलब 3-4 बार मुझे हुआ है और हर बार मैं देखा हूँ कि मैं तंदूर रोटी खाया हूँ, एक बार मैं परोठा खाया हूँ जो कि मैदे का बना हुआ है. तो डॉक्टर साहब मुझे ये होना हो ये मैदे से ही तकलीफ होती है. This is the reason power increase because they remember things we usually do not really remember. That is reason power increased in day-to-day life. Okay. Anyways, so can I say something? Comparative
Aruna Yes, sir. Manisha? Yeah. Yes, Thank you very much. Definitely. As always, I'm really very grateful. I really don't prepare. It is, I really don't prepare. I very bad about thank you. क्योंकि मुझे नहीं आता है thank करना. Seriously. But thank you very much. और मुझे कसम से नहीं लगता है कि मैं सच में बहुत बड़ा टीचर हूँ. और I feel I'm a good doctor. I feel I have the ability to. I'm trying to be vocal to my feelings and whatever I'm learning. One, die empty is my principle of life. Yeah, that is why I share everything, and I seriously, it's an earnest request to everybody. स्पेशली बिकॉज देखो होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने कहीं भी कॉपीराइट नहीं लगाया हुआ. अगर आप प्लीज याद रखो, प्लीज याद रखो, डॉक्टर हैनीमैन ने कहीं भी कॉपीराइट नहीं लगाया, ना उन्होंने डिसेबल्स बनाए अपने, ना भावा कि इसका रॉयल्टी उनके बच्चों को मिले, ये कहीं नहीं किया. प्लीज याद रखो. ये नहीं कि उनके बच्चे खराब थे, ये नहीं कि उनकी बीवी बेकार थी तो किसी को छोड़कर नहीं जाना होगा, ये नहीं था. इट्स नॉट आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. इट इज, वो एक अलग लेवल पर थे, वो एक माशाल्लाह से. तो हम उनके डिसाइपल्स हैं और सबको बताता हूँ कि वी बीइंग होम्योपैथ्स वी आर चोजन वंस. तो प्लीज ये मत रखो, वो जो एक अपनी हिंदुस्तानी परंपरा थी, जिन्हें पाया उन्हें छुपाया, एक वेरी प्राउडली पीपल से, विच इज बुनियादी तौर पे गलत है. तो प्लीज वो कॉपीराइट और ये मेरा ये मत करो, शेयर करो. कुछ नहीं होता है. कोई तुम्हारे बगल में आकर बैठे, कंपटीशन कुछ नहीं होता है. रोजी रोटी कोई कुछ नहीं करता है भाई. सच में हो जाओ, दिमाग भी ऊपर वाले ने दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कर्म डिसाइड करते हैं कि तुमको क्या करना है. तो प्लीज सच में रिक्वेस्ट है, हम लोग 50+ है सभी, आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, जीवन में आप जितना दोगे बहुत मिलेगा. आई एम टेलिंग यू, आपके लायकी से जितने भी आप, उससे ज्यादा मिलेगा और कभी कम नहीं पड़ता. मतलब मैं जब 25,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तभी भी मुझे भगवान ने वो जो भी था वो पर्याप्त था. मतलब जो प्राप्त था पर्याप्त था. आज भी मैं माशाल्लाह से बहुत, इनकम टैक्स के बारे में है तो बता नहीं सकता, बट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड स्टिल इट इज इनफ फॉर मी. तो कुछ नहीं है, आपको सच में बताता हूँ. जो भी ये शेयर करो, प्लीज, शेयरिंग इज व्हाट ह्यूमन बीइंग कैन डू. प्लीज डू दैट. ठीक है. वो स्कारलेट जॉनसन की कौन सी पिक्चर थी, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, उसके अंदर है कि वी पास ऑन द थिंग्स. स्कारलेट जॉनसन की भूल गया उसका नाम. प्लीज याद रखें. तो कीप शेयरिंग व्हाट एवर यू हैव, जो भी आपको आया. अभी देखो, बोलो निशु, एक केस बोलो 2-3 लाइन में. Yesterday night I had a beautiful case. ठीक है. See the results of homeopathy. ठीक है. Renal failure, creat was 12. Fine. In spite of dialysis, creat was not coming down. 14 से 12 पर आया, 12 से वही 12, 13, 14, 12, 13, 14, वही चल रहा है. 10 तक भी नहीं आया बेचारे का, 3-3.5 साल से. ठीक है. Within 24 hours the reports, I'll tell you how much it became. ठीक है. तो आया और एकदम बीवी बोल रही है, मैं क्या सर ये बात ही नहीं करते. बीवी बोलती है कुछ ज्यादा बात नहीं करते सर, ये क्या बंदा है, नाश्ता खाता है दोस्तों में, इधर उधर बहुत मजे करते हैं, खाना वाना पार्टी वार्टी करते हैं, बात नहीं करते सर घर में. बोला क्या, सुनील नाम था, तो छोटा था मेरे से. तो बोला सनी टेल मी यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू डोंट स्पीक मोर. क्या बोलूं यार, मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है, मजे करने अच्छी लगती है, क्या बीमारी है यार. 2 लाइन के अंदर पूरी जिंदगी बता दिया. ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे खुश रहना है, मैं यार हैपनिंग बंदा हूं. तो सी द वर्ड आई यूज सनी टू हिम टच्ड हिम. ओके, सुनील था. तो ये आप थोड़ा सा पेशेंट से अपनेपन से कोशिश करो. बिकॉज मेरे को लगा थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट पहना हुआ, 12 है उसको लगा हुआ, क्या बोलते हैं, फिस्टुला. ठीक है. तो देन आई took 2 beautiful rubrics. Okay, one is क्या लिया मैंने वहाँ, what desire for, what is that, क्या है वो desire, just a second, let me see desire, happy, क्या है वो, cheerful desire to be. Okay, and then second was, ये कम बात करता है यार, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं रॉकिंग मस्त यार. तो मैंने यार ये तो रॉकिंग है मस्त, मतलब ये सेंटिमेंटल है,
क्या कहते हैं उसको अपन, खाने पीने की जिसकी टेस्ट होती है गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं अपन लोग? गवर्नमेंट रसिया है ना, रसिया है, मतलब इसको सब चीजों का मस्त वो है ना, बच्चन का गाना, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, सारा गांव मुझे रसिया के है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, if you listen to that song, it was Bachchan's movie, Bachchan and Nutan ji was there in that movie. ठीक है, तो मिला यार ये तेरा, I took the rubric government and then one rubric I took was laconic. Which I have taught long back, I think मैं उसे tequila shot पढ़ाया करता था। तो laconic is using few words, likes to use few words. तो उसने 2 लाइन में पूरी लाइफ बता दिया ना। See, the thing why I took laconic was not because he was speaking less with his wife, which we all do that when I come back, when we go back home. Okay, girls also do that to the husbands. Don't laugh. Okay, so because and the laconic I took because उसने 2 लाइन में पूरा बता दिया bro. I was like crazy. बोला इसे 2, मैं ऐसा नहीं हूँ यार डॉक्टर साहब, मैं हैपनिंग हूँ यार, ये क्या है, कुछ नहीं रहता ना ऐसा नहीं मुझको। So laconic and cheerful desire to be, ये cheerful desire to be ये रूब्रिक आप हम लोग यूजुअली नहीं इस्तेमाल करते, आप देखो बहुत कम यूज करते हैं। So I gave him China 0/1. I told him bro ये जब तक जग रहा है तू 1-1 घंटे से लेते रहे। You won't believe tonight he came. Okay, 7:30 में बोला यार चलो डॉक्टर साहब आज ऑन द रॉक्स लेते हैं। मैं क्या भाई शांत रहे, गुरुवार है आज, ठीक है। His creat from 12 came down to 7. No dialysis. From 12 to 7. This was within 24 hours. Yesterday evening he had come. Fantastic. बोले यार मुझे अगली दवाई दे दो। अब मुझे डायलिसिस नहीं करना, नहीं भाई डायलिसिस करो, सब्र करो, but you will be fine. But within 24 hours it was like from 12 to 7 in spite of dialysis जिसका कम नहीं हो रहा था। So this you can do. Okay, the doses again what I wanted to tell कि renal failure वगैरह के cases में अपने को माइल्ड स्टिमुलस बार देना होता है, तो एलेपोटेसी यूज करो तो मजा आता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक थोड़ा ध्यान दो, बहुत मजा आता है। वो निचोड़ एसेंस लेने की कोशिश किया करो, बहुत मजा आता है। इत्र की तरह फिर खुशबू घुलने लगती है हवाओं में, है ना। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, रियली थैंक यू अरवा, थैंक यू मनीषा, all my patients, and Ashwini, thank you for thanking me. पहले तेरे को thanking you in anticipation. Yes. Good evening, So everyone. it's a surprise today On that behalf my of another daughter is there who's thanking me. Thank you, sir. Wow. Yes, Ashwini. Good evening, everyone. On behalf of Team PHF, I would like to express my heartfelt thanks to all of you. Our sincere gratitude to our respected Guruji, Dr. Liaquat Namoe sir, for his constant guidance, inspiration, and blessings. Special thanks to our speakers, Dr. Manisha Soni ma'am, Dr. Mansi Patil ma'am, for sharing their valuable knowledge and experience with us today. We are also thankful to Dr. Arwa Chinikamwala ma'am for the beautiful inauguration and introduction of the session. I would also like to thank the entire team of PHF for their efforts in organizing this program successfully. And finally, a big thank you to all the participants and audience for your time, support, and active presence. Thank you, everyone, and have a good night. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Bye. Don't you